Hello students, welcome to class 10th SST Economics chapter 1st Development. In this portion, I want to describe activity 2, activity 3 and sustainable development. Along with that, I will describe to calculate body mass index and human development. Well students, myself SJP. Once again, I welcome you in class 10th Economics, the very first chapter, Development. Children, some activities were left before we end this chapter. Let us study activity 2 of NCERT book on page number 12. He's telling study table 1.5 carefully and fill in the blanks in the following paragraphs. For this, you may need to make some calculations based on table. Children, this table belongs to educational achievement of rural population of UP. In first column, category is given. In second column, male percentage, and in third column, female percentage. In first column, under category section, literacy rate for rural population, males are 76% and females are 54%, and literacy rate for rural children in age group 10 to 14 years, males are 90% and females are 87%. And then percentage of rural children aged 10 to 14 attending schools, they are 85% male and 82% female. This activity wants to fill up the system given here. In this one, if we consider first section, he is telling the literacy rate for all age groups including young and old is dash for rural males and dash for rural females. Then, however, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are dash who are currently not in school. So, for this, I have made a calculation. You can understand on behalf of this calculation. In first paragraph, he is asking the literacy rate for all age groups, including young and old, is dash for rural females. So, from table, it is visible. In first portion, it will come 76% for rural males and 54% for rural females. It is visible from first topic, first category, literacy rate for rural population. And in the next portion, however, it is not just that these many adults could not attend school, but there are dash who are currently not in school. For that, currently not in school, we will make another calculation. That is, this calculation is visible here. That is currently not in schools. Males 100 to minus 85. We have to subtract 100 minus 85, then it will come 15%. And females 100 minus 82, it will come 18%. So in the second fill-ups, it will come 15% males and 18% females. In this manner, you will fill here 18% males and 15% males and 18% females. Clear? Now it is clear from the table. In B section we will come that dash percent of rural girls. To calculate percent of rural girls, we will subtract 100 minus 82, it will come 18%. So 18% girls, they are rural girls. And in next section, 100 minus 85, that is equal to 15%, that is 15% rural boys. So in first section, it will come
15%, and here it will come 18%, and it will come 15% for rural boys. And in next portion, therefore literacy among children in the age group 10 to 14 is as high as, it will come 100 minus 87, that is 13% for rural females, and 100 minus 90, that is 10% for rural females. So in C section, this high level of literacy among dash age group, so that age group will come 10 to 14 years age group. In this way we can find out this activity. So this activity enhance your creative skill and your thinking skill, because the concept of CBSE is to develop skills in students. Now we will come on another activity that is based on body mass index. In this activity, one way to find out adults are undernourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. यानी अगर एडल्ट्स हमारे जो है अंडर नूरिश्ड हैं, अगर कुपोषण के शिकार हैं, तो हमें जो है उनका जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट है वो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके बताते हैं कि कोई अंडर नूरिश्ड है या ओवरवेट है. दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट. सो चिल्ड्रन, यू शुड नो what is body mass index. For this purpose we have made a calculation in activity 3. BMI, the full form of BMI is body mass index. Then how to calculate BMI, कैसे BMI कैलकुलेट करेंगे? For to calculate BMI we will take weight in kg, height in meters. Then apply this formula BMI equal to weight upon height in meter into height in meter. If BMI is less than 18.5, person is undernourished. Means if a person is BMI is 18.5, then he is undernourished, and if BMI is greater than 25, then person is overweight. This activity is telling this much information. So we will discuss some more topic. Let each student in a class find out the weight and height of 3 adult persons of different economic backgrounds. अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स से बच्चों का अगर हम हाइट वेट मेज़र करते हैं, यानी कुछ कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स, कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट्स और ऑफिस वर्कर्स, बिजनेस पर्सन्स के बच्चों का या उनका, तो आफ्टर कलेक्टिंग डाटा वी विल हैव सम ऑब्जर्वेशन. ही इज़ टेलिंग टू कलेक्ट डाटा from all the students and make a combined table and calculate their BMI. So we can easily find out the relationship between economic background of persons and his or her nutritional results. So in this manner we can find out body mass index of people. Now we will come on activity. It is related to activity 3, human development report. Once it is realized that even though the level of income is important, ऐसा एक बार रियलाइज़ हो चुका है कि हमारा जो लेवल ऑफ इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही, yet it is an inadequate measure of the level of development. लेकिन ये डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इट इज़ नॉट सफिशेंट. सो वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन. तो अब हम जो है बाकी और तरीक़ों के बारे में सोचेंगे.
देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन। इस तरह के जो है मेथड्स की बहुत लंबी लंबी लिस्ट है, बट देन इट वुड नॉट बी यूज़फुल, लेकिन ये यूज़फुल भी नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बहुत ही स्मॉल नंबर चाहिए, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स। मतलब हम हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स का यूज़ करके डेवलपमेंट फाइंड कर सकते हैं। सच एज वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र। वो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर जिसे हमने महाराष्ट्र और केरला में कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट को यूज़ किया था, they are among them. So over the post decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. इस तरीके से पिछले 10 सालों में हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया भर में यूज़ किया जा रहा है। इनकम के साथ हम डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो UNDP, ये एक डिपार्टमेंट है UNDP, उसके ज़रिए जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है जो कंट्रीज़ को कंपेयर करती है उसके एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल और हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम के बेस पर। ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल छपता है पूरी वर्ल्ड का। It would be interesting to look at a certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2015। तो ये सारी डाटा बुक एक छपती है, इसको हम देख करके सारे डाटा को, रेलिवेंट डाटा को समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया और हमारे जो नेबर्स हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसा है और उनका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। To understand this, we can continue a table 1.6 in which some data regarding India and its neighbors for 2014 is given. There are 6 countries in first column: Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal and Bangladesh. So in second column, gross national income, that is per capita, according to 2014 in American dollar. So Sri Lanka has gross national income of 9,779, while India has only 5,497, and Myanmar 4,608, Pakistan 4,866, Nepal 2,311 and Bangladesh is 3,191. So from this table we conclude that Sri Lanka has highest gross national income while Nepal has the least gross national income. And according to 2014, India's gross national income was 5,497. So in second column, life expectancy at birth 2014 is given. मतलब कितने साल तक, कितने एज तक हम जिंदा रह सकते हैं, वही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज के रूप में। तो श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74.9 है, ईयर्स में है, और इंडिया का 68 ईयर मानी जाती है। म्यांमार 65.9 ईयर्स, पाकिस्तान 66.2, नेपाल 69.6 and Bangladesh 71.6. So highest life expectancy rate according to 2014, Sri Lanka has the highest one, 74.9 years, while Myanmar is the least. In third column, literacy rate for 15+ years population, मतलब 15 साल से ऊपर के कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। 15 साल तक तो हाई स्कूल तक तो लगभग बच्चे अब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये 15 साल से ऊपर के बच्चों का जो लिटरेसी रेट था वो 2005 से 2013 के बीच में इंडिया में 91.2% पाया गया, श्रीलंका में, और इंडिया का 62.8, और म्यांमार 92.6,
पाकिस्तान 54.7, नेपाल 57.4 और बांग्लादेश 58.4. In this way, we can say that the highest literacy rate is of Myanmar according to this table from 2005 to 2013, and the least one is of Pakistan, that is only 54.7, and India's literacy rate was between 2005 to 2013 62.8 for 15 plus years, not overall. So on behalf of this, HDI rank is calculated of these 6 countries. According to 2016, Sri Lanka's HDI rank was 73rd, while India's HDI rank is 130, and remaining countries HDI rate you can understand. So this was report, Human Development Report. So the topics, some terms used here that we should learn here from this notes. He is telling HDI stands for Human Development Index. Okay, anybody ask full form of HDI? You will say Human Development Index. HDI ranks in above table are out of 188 countries in all. उस समय 188 कंट्रीज़ का HDI रैंक कैलकुलेट किया गया था 2014 में. नाउ सेकेंड पॉइंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, किसको डिनोट करता है, किसको प्रदर्शित करता है? एज द नेम सजेस्ट्स, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, यानी कि हम एवरेज कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, यानी एक आदमी लगभग कितने साल तक जीवित रह सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदा होने के बाद. तो दिस इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. So we can say life expectancy is the average expected length of life of a person at the time of birth. This is, it may be asked in examination for 1 marks. Then another term comes, per capita income is calculated in dollars. हमेशा याद कर लीजिए कि पर कैपिटा इनकम को हम डॉलर्स में ही कैलकुलेट करते हैं, नॉट इन रुपीज़ और अदर करेंसीज, फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, ताकि पूरे वर्ल्ड का जो है पर कैपिटा इनकम कंपेयर कर सकें. इट इज़ डन ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, ताकि हर कोई दुनिया में हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सके जब हम उसे डॉलर में जो है कंपेयर करते हैं. तो सो दिस वाज द एक्टिविटी. नाउ वी विल कम टू अनदर टॉपिक, बट बिफोर दैट वी हैव सम पोर्शन लेफ्ट टू डिस्कस, एंड दीज आर, he is asking about that data which was not surprising, that a small country in our neighborhood. इस डाटा से हम क्या देखते हैं कि हमारे नेबरहुड में एक स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड, श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया. श्रीलंका जो है हमसे बहुत आगे है इन एवरी रिस्पेक्ट, हर क्षेत्र में. एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड. और इतना बड़ा इंडिया होने के बाद भी इसका वर्ल्ड में एकदम सबसे लो रैंक है. सो टेबल 1.6 व्हाट वी हैव स्टडीड आल्सो शोज दैट दो नेपाल हैज़ लेस देन हाफ द पर कैपिटा इनकम, नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम हाफ है, हाफ से भी लेस, येट इंडिया के जो कि हाफ से भी कम है, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट लेवल. लेकिन फिर भी नेपाल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में और लिटरेसी लेवल के मामले में इंडिया से बहुत आगे है. सो मेनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन suggested in calculating HDI and many new components have been added to HDI report, Human Development Report. तो इस तरीके से बहुत सारे जो है सजेशंस मिले इसको कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत सारे
इसके कंपोनेंट्स हैं जो जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते समय ऐड किया गया। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारा मतलब ये है, इससे एक बात ये क्लियर हो जाता है कि डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हमारे सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है इस समय। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी जो जनता है, हमारे जो पीपल्स हैं, पब्लिक हैं, उनका हेल्थ और उनका वेल बीइंग, उनकी भलाई, वही सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आप सोचते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट्स है और पहलू है जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है कंसीडर कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं? Well, so there are so many things, but it will take a lot of time. Along with that, we are coming to a new topic, which is sustainability of development. Children, suppose for the present that a particular country is quite developed. मान लेते हैं कोई कंट्री बहुत कुछ डेवलप्ड है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। तो हम चाहेंगे, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का लेवल है ये और ऊपर तक जाए, कम से कम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी मेंटेन्ड रहे। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल और यही हम चाहते हैं निश्चित रूप से। सो हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। तो हमारे जो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century की जब बात की जाती है, तब से बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं, इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि जो इस समय का मौजूदा जो तरीका है या हमारा जो डेवलपमेंट का लेवल है, ये हमारा सस्टेनेबल नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। सो फॉर दिस ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। Example first, this is groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. We have observed recently and suggestions are coming that we should not overuse groundwater। जो हमारा ग्राउंड वाटर है इसका हमें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये बहुत सीरियस थ्रेट है, बहुत गंभीर हमारे लिए धमकी और चेतावनी है। About 300 districts have reported water level decline of over 4 meters during the past 20 years। करीब 300 डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो 4 मीटर्स डेक्लाइन कर गया, जो उसका एक्चुअल वाटर लेवल होना चाहिए उससे 4 मीटर नीचे चला गया है पिछले 20 सालों में। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves। 1/3 देश, करीब अगर 188 कंट्रीज़ ले लिया जाए तो करीब 63 कंट्रीज़ उनमें से ग्राउंड वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। और आने वाले 25 years में 60% कंट्रीज़ यही काम करेगी। इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूज़, अगर हमारा इसी तरीके से जैसा हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं अगर ये कंटिन्यू रहा तो निश्चित रूप से हमारे 60% लोग जो है इसको ग्राउंड वाटर को यूज़ करके लेवल को, वाटर टेबल लेवल को और गिरा देंगे। सो ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटो एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया and some coastal areas and rapidly growing urban settlements। So here
we can say that groundwater is particularly overused in एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस, जो कृषि से संपन्न क्षेत्र हैं जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी, इसके अलावा हार्ड रॉक प्लेटो एरियाज़ ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, डेक्कन प्लेटो एरिया, और कुछ कोस्टल एरियाज़ जहाँ बहुत तेज़ी से वहाँ शहरीकरण हो रहा है, लोग वहाँ मकान बनाते जा रहे हैं, शहर बनता जा रहा है. सो वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड? बिकॉज ऑफ less availability of rainwater, and they wants to do modern farming. People are doing modern farming. They are going to grow cash crops for earning, so it requires more and more water. Similarly, they are using HYV seeds, high yielding variety seeds. They are using fertilizers, they are using insecticide, pesticides. So this modern farming method requires large amount of water. That's why due to unavailability of rain in particular time, they used to draw water from underground. So this is the reason. So can there be development without overuse? क्या अगर हम ओवर यूज़ ना करें तो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, बट वी हैव नॉट डेवलप्ड सच टेक्नोलॉजी. We are needed to develop such technologies so that we should not overuse these waters, and we should have some, its substitute. Technology should come ahead. So according to this example, we can say groundwater is an example of renewable resources. ये ग्राउंड वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. These resources are replenished by nature as in case of crops and plants. और ये जो हमारा रिसोर्स है ये रिप्लेनिश हो जाता है, फिर से जो है इसका वाटर लेवल बन जाता है आफ्टर रेनफॉल क्रॉप्स एंड प्लांट्स के लिए. सो हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड, भले ही ये रिसोर्सेज हमारे ओवर यूज्ड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर का केस है, इफ़ वी यूज़ मोर देन what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. हमारे रेनफॉल की वजह से जो वाटर टेबल मेंटेन हो जाता है, उससे अगर हम उसकी अपेक्षा हम ज़्यादा अगर क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर के यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ओवर यूजिंग में आ जाता है, क्योंकि वो हमारा वाटर लेवल ड्रॉप कर जाता है. सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, कई सालों के यूज़ के बाद. सो वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड. अर्थ पे हमारे कुछ फिक्स्ड स्टॉक है जो कभी भी दोबारा नहीं पाए जा सकते. सो वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हम उन न्यू रिसोर्सेज को खोज सकते हैं. दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं उसे हम अभी खोज सकते हैं. न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और ये नए नए रिसोर्सेज अगर हम खोज लेंगे तो ये हमारे स्टॉक को ऐड करेंगे, हमारा स्टॉक बढ़ेगा. एंड हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, और आने वाले समय में भले ही ये एग्जॉस्ट हो जाएगा. इन सेकेंड एग्जाम्पल वी विल कम अक्रॉस crude oil case, exhaustion of natural resources. For example, crude oil that we extract from the earth is a non-renewable resource. जो crude oil, डीजल, पेट्रोल या जो भी हमारे पेट्रोलियम गैसेस बनती हैं वो सब crude oil के रूप में होता है. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. भले ही हमने कुछ सोर्सेज और प्राप्त कर लिए हैं कुछ एक्सप्लोरेशंस करके, लेकिन ये तो नॉन रिन्यूएबल है, एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगे. सो इन दिस एग्जांपल वी विल डिस्कस फॉर इंडियाज़ स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल. दिस टेबल शोज क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया. हियर इन फर्स्ट कॉलम region or country is given. Here Middle East, United States of America and all over world की बात हो रही है. So here reserves 2013 में ये हमारे reserves कितने थे
ये 1000 मिलियन बैरल्स, मतलब इस नंबर के आगे 1000 मिलियन बैरल्स लगा देंगे तब पता चलेगा कि इतना रिज़र्व था। मीन्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे 808.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स जो है क्रूड ऑयल मिला 2013 में, जबकि यूएसए में ओनली 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल्स ही मिला। और पूरे वर्ल्ड का जो टोटल है दैट इज़ 1687.9 थाउजेंड मिलियन बैरल्स, इतना हमारा क्रूड ऑयल था रिज़र्व। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट। मिडिल ईस्ट का जो हमारा ये रिज़र्व है 78.1 ईयर के बाद फ्रॉम 2013 इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड 78.1 मीन्स इतने सालों तक ही ये चल पाएगा इतना रिज़र्व। यूएसए का रिज़र्व 12.1 ईयर के बाद ख़त्म हो जाएगा और वर्ल्ड का टोटल रिज़र्व 53.3 ईयर के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो द टेबल गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। ये हमारा जो टेबल क्या दे रहा है, एक एस्टीमेट दे रहा है हमें जो है, इट इज़ टेलिंग एस्टीमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। मोर इम्पॉर्टेंट, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last। इस टेबल से ये भी पता चल रहा है कि ये क्रूड ऑयल का स्टॉक कितने सालों तक चलेगा इन कंट्रीज़ में। if people continue to extract it at the present rate the reserves would last only 53 years more। अगर पब्लिक जो है इसे आज की रेट से अगर एक्सट्रैक्ट करती रही है इन क्रूड ऑयल्स को तो 53 ईयर से ज़्यादा नहीं चलेगा। सो दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, ये पूरी दुनिया के लिए है। However, different countries face different situations। जबकि अलग अलग कंट्रीज़ के सामने अलग अलग सिचुएशंस हैं। कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड ऑन importing oil from abroad because they do not have enough stocks of their own। इंडिया जैसे कंट्रीज़ को विदेश से क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स नहीं है। सो इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, ये हर आदमी पे एक बोझ बन जाता है। सो देयर आर कंट्रीज़ लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। और इसी तरीके से यूएसए जैसा कंट्री जिसके पास भी लो रिज़र्व है और इसलिए ये भी चाहता है कि अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को सुरक्षित रखने